Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads. We are once again in front of you to discuss the extracts, or you can say the MCQs of Law Spring. Guys, yesterday we had a discussion on extracts of the last lesson, wherein we discussed more than 18 extracts along with 4 questions each. So you can say that there were around 72 questions. 72 questions को हमने डिस्कस किया था. So we are once again in front of you to discuss our second chapter of Flamingo, that is Low Spring. Got it? So Low Spring का meaning सबसे पहले आपको पता होना चाहिए guys. Low Spring means lost childhood. Got it? So this is the theme of this chapter. Chalo, without wasting much of the time, let's move on to the first extract, and I would request all of you to share this video with all your friends. Do subscribe to our channel, do press the bell icon so that you can get regular updates from Brainy Lads. So the first extract is, why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning. The narrator is talking to Sahib, Anis Chang is talking to Sahib, and she inquires a few questions from him whether he goes to school or not. So this is what extract is all about. I want all of you to go through the extract so that we can move further towards the questions. Question number 1 is, who is I in the above line? I कौन है guys? तो I है इसमें अनीस चंग. जैक फिने नहीं है, अल्फोंस टोडे नहीं है, कॉलिन डेक्स्टर नहीं है. Got it? Let's move on to question number 2. Second, third and fourth देख लेते हैं. Which chapter has this extract been taken from? The Low Spring is the right answer. What does the word amidst mean? That is in the middle of. What does the word glibly mean? Glibly का आपको meaning बताना है कि glibly क्या होता है. So guys, this is D question. Glibly का meaning आपको बताना है. Glibly का meaning होता है बच्चों superficially, intrinsically यानी internally नहीं होता, confidently नहीं होता, none of these होगा. So these are the first 4 questions. एक बार answers भी match कर लेते हैं सभी के. So answer है Anis Chang, Low Spring, in the middle of or superficially. Got the point? Let's move on to second extract. Second extract पे बढ़ते हैं guys. If I start a school, will you come? The narrator keeps on asking question from Sahib Alam. She seems interested in him. Sahib Alam, who is a rag picker by profession, who has an irony in his name. उससे बातें चल रही है narrator की. देखते हैं कि what questions are asked in extract number 2. Why does the narrator feel embarrassed? Narrator को embarrassment क्यों feel होती है? For making a fake promise, for making a promise that she can keep, for making a real promise, no, for not making any promise. So first is the right option. She makes a promise of opening a school, which later makes her feel embarrassed. ही है. Which device has been used in Sahib's name? Sahib के नाम में कौन सी है guys? As I told you, irony. His name suggests that he is Lord of the universe. His name suggests that he is the Lord of the universe, but in reality, he is a poor rag picker. So this is what irony is all about. Irony है. What does the phrase abound in? Abound in का meaning पूछा गया. Polluate with भी हो सकता है. Team in भी ठीक है. Exist in large quantity भी ठीक है. So guys, the right option is all of these. इसका right option होगा all of these. Got the point? Let's move on to the D. Find out the synonym of the word bleak. Bleak का आपको क्या बताना है बच्चों? Synonym बताना है. Let's see what is the answer of question number D. So black, dim, hopeless, ये सारे क्या होते हैं? Synonym होते हैं guys किसके? Bleak word के. Let's move on to next one. Next extract पे बढ़ते हैं guys. Extract number 3 एक बार देख लेते हैं. What is there in extract number 3? Unaware of what his name represents, he roams the streets. So we know that Sahib has been roaming in his streets, which are full of rags. Sahib is not literate, though he wants to. तो उसी से related है, उसके बारे में कुछ बताया गया, उससे related कुछ questions हैं, वो देख लेते हैं. What is the factual reason for not wearing चप्पल? Real reason आपको बताना है कि real reason क्या है साहिब के चप्पल ना पहनने का. Their poverty, yes. Their fashion, no. Their inability to get the chappals down from the shelf, no. Their excuses, no. The real reason is their perpetual poverty guys. गरीबी की वजह से they are unable to buy chappals, or you can say footwear. What does the word barefoot means?
विदाउट फुटवेयर इज द राइट ऑप्शन, ये नहीं है गाइस, विदाउट फुटवेयर, नंगे पैर हम जिसको बोलते हैं बेयरफुट, वो राइट है. विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन हु अपीयर्स लाइक. गाइस व्हेनेवर देयर इज अ कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, तो वहां पर जो राइट आंसर होगा गाइस वो क्या होगा, सिमिली होगा. सिनेक्डकी नहीं है, मेटोनमी नहीं है, जुगमा नहीं है, द राइट ऑप्शन इज सिमिली. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर डी. रिप्लेस द फ्रेज लैक ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको रिप्लेस करना है डेफिशिएंसी ऑफ, लैक ऑफ के बराबर ही है, सेम ही है, scarcity of, shortage of, सारे सेम है guys, so the right option is all of these. Got the point? So this is, let's move on to our next phrase, next extract पे बढ़ते हैं. That is extract number 4. I remember a story from a man from Udipi once told me as a young boy. So this is all about a man who went to temple to pray for pair of shoes, उसके बारे में है. इसके questions देख लेते हैं अभी. Where is Udipi located in India? That is in Karnataka. What does low spring means? I discussed it at the commencement of the chapter, at the beginning of the chapter, that is lost childhood. What would the boy pray for pair of shoes के लिए pray करता था. Name the author of this chapter, that is Anish Chand. Got it guys? Let's move further, आगे बढ़ते हैं. सारे आंसर्स ठीक है. एक्सट्रैक्ट 5 पे, young boys like the son of priest now wore shoes but many others like the rag pickers. तो कंपैरिजन किया गया है दिल्ली और सीमापुरी का, देर इज़ नो कंपैरिजन, कंट्रास्ट यूज़ किया गया. तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चंस क्या है. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी. कौन सा है गाइस, तो कंट्रास्ट है, यहाँ पे कंट्रास्ट यूज़ किया गया है. सीमापुरी को दिल्ली जैसा नहीं बताया गया है. सीमापुरी इज़ इन दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. आई मीन देर इज़ नथिंग लाइक दिल्ली इन सीमापुरी. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एज वेल एज डेवलप्ड, लेकिन सीमापुरी में डेवलपमेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है. ऑल द रैक पिकर्स लिव ओवर देयर. सो विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज, कंट्रास्ट. वेयर डिड स्क्वेटर्स कम फ्रॉम. स्क्वेटर्स कहाँ से आए थे गाइस, बांग्लादेश से आए थे, बंगाल से नहीं आए, एरिजोना से नहीं आए, ये नहीं होगा. वेयर इज सीमापुरी लोकेटेड, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अ रैक पिकर. रैक पिकर कौन होता है, वन हु पिक्स रैग्स, वन हु सेल्स रैग, वन हु वॉन्डर्स हियर एंड देयर फॉर रैग्स. यस, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन. सो कंट्रास्ट, बांग्लादेश एंड दिल्ली, ऑल ऑफ दीज, सारे आंसर्स क्या है, एब्सोल्युटली राइट. एक आधी टाइपिंग एरर हो जाती है तो गाइस डू एडजस्ट इट, हो जाता है, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं. लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे. एक्सट्रैक्ट 6 पे, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. बांग्लादेशीज की बात हो रही है जो सीमापुरी में रहते हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस की बात हो रही है. हु, वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं वो, फिरोजाबाद में नहीं रहते गाइस. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ है. सीमापुरी, यस, सीमापुरी इज़ द राइट ऑप्शन. फिरोज़ाबाद तो बैंगल मेकर्स के लिए, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बैंगल मेकर्स की जब बात करेंगे तो दे लिव इन फिरोज़ाबाद. सारे रैक पिकर्स कहाँ रहते हैं, सीमापुरी. दौलताबाद, दया बस्ती, सारे आंसर्स क्या रॉन्ग है. व्हाट डज द नरेटर मीन बाय फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सर्वाइवल. दैट दे केम टू इंडिया फॉर फूड, दैट दे केम टू इंडिया फॉर सर्वाइवल, दैट दे केम टू इंडिया फॉर मनी. पैसे के लिए तो नहीं आए, वो फूड के लिए आए थे, और फूड होगा तो सर्वाइवल होगा. इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए. सो द बेस्ट ऑप्शन इज सर्वाइवल. आई थिंक सर्वाइवल फूड से बेटर लग रहा है, फूड भी ठीक है, एक बार मैच कर लेंगे. फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड टैटर्ड. टैटर्ड होती है गाइस फटी पुरानी, फटे जो, वॉर्न एंड टॉर्न, एब्सोल्युटली नहीं होगा. बैटर्ड भी नहीं होगा, बैटर्ड ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो बोथ 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन. गॉट इट. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस. बोथ 1 and 3 ठीक है, ये भी ठीक है हमारा. सीमापुरी भी ठीक है, फूड है, तो सर्वाइवल दोनों आंसर हो सकते हैं राइट. डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर. व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ट्रांजिट होम. ट्रांजिट होते हैं विच कैन बी शिफ्टेड. टेम्परेरी होम्स को बोला जाता है, परमानेंट होम्स नहीं होते, वाटर प्रूफ्स नहीं होते, तो टेम्परेरी होम्स होते हैं. व्हाट द पॉइंट. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. एक्सट्रैक्ट 7 पे देखते हैं. एक्सट्रैक्ट 7 में क्या है. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. आपको सीमापुरी में रहना है तो रैक पिकिंग करनी पड़ेगी. इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट. सीमापुरी की बात हो रही है, साहिब की बात हो रही है. व्हाट मेक्स द नरेटर कॉल रैक पिकिंग अ फाइन आर्ट. फॉर इट टेक्स ब्रेन टू पिक रैग्स. यस, कूड़ा उठाने के लिए ब्रेन चाहिए. फॉर इट टेक्स स्किल. यस, फॉर इट टेक्स एक्यूमेंट टू पिक रैग्स. तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. एक्यूमेंट भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, ब्रेन भी चाहिए. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड एक्सट्रैक्ट पे देखते हैं. What does the word scrounging mean? Scrounging का मीनिंग पूछा हुआ, looking for, searching, seeking, all of these होता है guys. What does rack picking mean to elders? बड़ों के लिए देखिए, children के लिए it is wrapped in wonder,
बड़ों के लिए क्या है, इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो द राइट आंसर इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वे टू एंजॉय तो वो कर ही नहीं रहे, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इसमें आपको क्या करना है गाइस, आपको लिटरेरी डिवाइस बतानी है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। आप बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में आके कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, जल्दी से। मैं आपको बता देता हूँ, राइट ऑप्शन इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है विच सीम्स ऑर्डिनरी, स्टेटमेंट जो ऑर्डिनरी दिखती है बट हैज़ अ डीपर मीनिंग, सो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। हमने एक हमारी वेबसाइट पे नोट्स भी हैं, लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइसेस क्लास 12th डालोगे तो गूगल टॉप पर हमारे ही नोट्स दिखाएगा। और ये सारी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, आप लिंक पे क्लिक करके भी नोट्स पे आप सीधा रीडायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सारे आंसर्स ठीक हैं। एक्सट्रैक्ट 8 पे आ जाते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट। साहिब वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस, उसी से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट है गाइस, इसको गो थ्रू कर लीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब बाय प्रोफेशन, रैक पिकर। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय डिस्कार्डेड शूज, रिजेक्टेड शूज, इसका आंसर आएगा गाइस। आगे देख लेते हैं ऑप्शंस कौन से हैं। ही हम्स मीन्स हम मतलब ही सिंग्स, बाकी गलत है। when does the gatekeeper let साहिब, कब आने देता है वो साहिब को, when no one is inside, जब कोई भी inside नहीं होता तब जो गेटकीपर है let साहिब enter the club। got it? साहिब को याद रखना है, साहिब is fond of playing tennis shoes, और उसका एक ड्रीम था to wear tennis shoes that has come true। his dream has come true for a rich boy rejected the shoes and which were got by साहिब। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं आगे क्या एक्सट्रैक्ट 9th में। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद द होल इज अ ड्रीम, साहिब की बात की जा रही है। साहिब हु हैज़ चेंज्ड हिज प्रोफेशन, हु वर्क्स एट अ टी स्टॉल नाउ फॉर ₹800। ये देखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वेयर इज साहिब एम्प्लॉयड नाउ, साहिब की जॉब अब कहाँ पर है, एट अ टी स्टॉल। वेयर डज द नरेटर, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय द बैग वाज हिज, ही वाज अ स्लेव अर्लियर, नहीं, ही वाज हिज ओन मास्टर अर्लियर, अब वो ओनर नहीं है। सो द सेकंड जो ऑप्शन है ये राइट है। अर्लियर ही वाज हिज ओन मास्टर, नाउ ही इज अ स्लेव, ये आपको याद रखना है। चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साहिब्स एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ पे उसका एटीट्यूड क्या है गाइस, उसका एटीट्यूड पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक होता, ही वुड हैव स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, rather than starting his own business he has decided to be the slave of someone। उसका एटीट्यूड लाइफ की तरफ क्या है गाइस, पेसिमिस्टिक है, रिजर्व नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं। हाउ हैज साहिब ड्रीम कम ट्रू, ही हैज गॉट अ पेयर ऑफ टेनिस शूज, ये राइट ऑप्शन आएगा। गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू एक्सट्रैक्ट 10th एक्सट्रैक्ट पे बढ़ते हैं। आई वांट टू ड्राइव अ कार, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर लो स्प्रिंग, मुकेश वाले पार्ट का है, इसको गो थ्रू कर लीजिए, देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। व्हाट डज द वर्ड मिराज मीन्स, मिराज का मीनिंग पूछा हुआ है गाइस। मिराज क्या होता है, इल्यूजन होता है, इंट्यूशन नहीं होता, ब्यूटिफिकेशन नहीं होता, हाइपरटेंशन नहीं होता। तो लूम्स लाइक अ मिराज, लूम्स जो वर्ड है इट इज लुक्स लाइक अ मिराज, जो हो गया वो दैट इज कॉल्ड इल्यूजन, जिसको भ्रम बोलते हैं गाइस, इल्यूजन हो गया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स, बिकॉज ही वांट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर, ओन ऑनर, स्लेव नहीं बनना चाहता, साहूकार से दोस्ती नहीं करना चाहता, वो अपना ओन मास्टर बनना चाहता। हाउ लॉन्ग हैव द बैंगल मेकिंग फैमिलीज बीन वर्किंग इन फिरोजाबाद, कब से काम कर रही हैं वो फिरोजाबाद में, आपको ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, अगले ऑप्शंस देख लेते हैं गाइस। अगले ऑप्शंस क्या है, फॉर सेंचुरीज, फॉर डेज। गाइस सेंचुरी से काम कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से वो काम कर रहे हैं इसलिए। व्हाट इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मुकेश का एटीट्यूड पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक नहीं है। तो गैस याद रखना, साहिब का जो एटीट्यूड है दैट इज पेसिमिस्टिक लिखना है आपको, और मुकेश का जो एटीट्यूड है दैट इज ऑप्टिमिस्टिक आपको लिखना है। गॉट द पॉइंट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एक्सट्रैक्ट 11th एक्सट्रैक्ट देखते हैं। मुकेश फैमिली की बात की जा रही है, दैट अंडर विच कंडीशंस दे वर्क एज बैंगल मेकर्स, जो
हैजर्डस कंडीशंस हैं उनकी बात की गई है। व्हाट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इलीगल कहाँ है, आपको फिरोज़ाबाद के बच्चों के लिए बताना है कि उनके लिए इलीगल क्या है गाइस। उनके लिए बैंगल मेकिंग में इंडस्ट्री करना, काम करना इलीगल है। वर्किंग एज लेबरर्स, ये भी ठीक है। तो तीनों का पूछा हुआ जनरली तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। बच्चों का पूछा हुआ है, अगर फिरोजाबाद का पूछा होता तो बैंगल इंडस्ट्री, मुझे लगा जनरली पूछा गया तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तीनों चीजें इलीगल है बच्चों के लिए। व्हाट डज द नरेटर मीन बाय स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, वर्क डॉगेडली, यस, स्लेव अवे, ग्राइंड अवे, तो इसका आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट का भी ऑल ऑफ दीज है और सेकंड का भी ऑल ऑफ दीज है। लेट्स मूव फर्दर। अंडर व्हाट कंडीशन डू दीज बैंगल मेकर्स लिव इन, कैसे रहते हैं वो, पैथेटिक कंडीशंस में, हैजर्डस, हार्मफुल, इसका आंसर भी क्या है गाइस, ऑल ऑफ दीज है। तो तीनों का आंसर अभी तक क्या है, ऑल ऑफ दीज है। लेट्स मूव फर्दर, आगे देखते हैं। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय प्रीमेबल स्टेट, प्रीमेबल स्टेट का मतलब होता है बच्चों एंशियंट स्टेट, पुराने टाइप की लाइफ थी, दैट इज एंशियंट, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमेबल स्टेट बोलते हैं। इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो रहा है गाइस, चैप्टर समझ आ रहा है तो डू शेयर इट सो दैट इट कैन हेल्प आउट द स्टूडेंट्स। बहुत सारी क्वेरीज आती है हमारे पास, डू डिस्कस द एक्सट्रैक्ट्स, तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन गो देयर, डाउनलोड, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए एक्सट्रैक्ट सेकंड पे, सॉरी 12th पे मूव ऑन करते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज ए टेलर, यहाँ पे मुकेश के फादर की बात की जा रही है, उसकी ग्रैंड मदर की बात की जा रही है, हु इज़ अ बैंगल मेकर हु हैज़ लॉस्ट हर आइज। तो हु इज़ ही इन द अबव लाइन, तो ही देख लेते हैं, पहला ही कौन है, ये जो ही है इसके बारे में बताना है। मुकेश के फादर की बात की जा रही है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट सूट्स द पर्सनैलिटी ऑफ मुकेश ग्रैंड मदर, कैसी है वो, सुपरफ्लूअस नहीं है, खर्चीली नहीं है, सुपरस्टिशियस है, सुपर वुमेन भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा। तो सुपरस्टिशियस इज द राइट ऑप्शन। गॉट द पॉइंट गाइस। सी और डी देख लेते हैं। व्हाट इज कॉमन बिजनेस ऑफ ऑल द पीपल इन फिरोजाबाद, बैंगल मेकर्स हैं गाइस सारे। हाउ डू बैंगल मेकर्स गेट ब्लाइंड, ड्यू टू द डस्ट, मिट्टी से नहीं होते, रैक से नहीं होते, ड्यू टू द डस्ट ऑफ ग्लास, बेयरफुट से भी नहीं होते। चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस गिवन है, 13th एक्सट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्पाइरल बैंगल्स, बैंगल्स की बात कही है गई है दैट ऑल कलर्स ऑफ बैंगल्स विच आर अवेलेबल इन अ रेनबो, सभी मिल जाएंगे आपको। उनकी कंडीशन की बताई गई है कि कैसे रखे हुए हैं वो। व्हाट डज द वर्ड शेंटी मीन, शेंटी का मीनिंग बताया, पूछा गया आपसे। शेंटी का मीनिंग क्या होता है गाइस, होवल भी होता है, शैक, हट, तो राइट आंसर आ जाएगा गाइस ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो हैं वो डार्कनेस के हिसाब से एडजस्टेड है। नरेटर क्या कहना चाह रहा है, देयर आईज आर ब्राइट, नो, देयर आईज लाइक डार्कनेस, नो, देयर आईज लाइक लाइट, नो, देयर आईज आर वीक, उनकी आंखें वीक हो गई हैं। Why do all the people of Firozabad have to make bangles? Because of politicians, bureaucrats, साहूकार, तो सभी की वजह से। So the right answer is all of them. Let's move on to the last one. उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू दे बैंगल, गाइज ये इस क्वेश्चन में एरर है, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, इसको कंप्लीट कर ले। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू बैंगल मेकर्स लिव, पैथेटिक, मिजरेबल, एंशिएंट, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर। गॉट इट। चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइज। 14th पे आ जाते हैं। Why not organize yourself? This piece of advice is given by Anis Chand to the young bloods, to the young man whom she found working over there. Why can't, who can't, guys ये why आएगा, टाइपिंग एरर है, एडजस्ट कीजिए। Why can't the bangle makers organize themselves into cooperatives? Because of politicians, bureaucrats, because of lack of money, because of lack of initiative, तो all of these इसका आंसर है। What does the phrasal verb होल्ड अप मीन, होल्ड अप का मीन क्या है, फोर्स, अर्ज, प्रेशराइज, ऑल ऑफ दीज, इसका भी आंसर क्या है गाइस, ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज देयर नो लीडर अमंग देम, फॉर दे आर इलिटरेट, फॉर दे हैव नो मनी, फॉर दे आर इंसिस्टेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, इसका आंसर भी गाइस ऑल ऑफ दीज आएगा, तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। व्हाट डज द वर्ड विशस मीन्स, विशस होते हैं गाइस ऑल ऑफ दीज, सो सभी का आंसर ऑल ऑफ दीज हैं, तीनों के तीनों ऑप्शंस चारों क्वेश्चंस के क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 15th। द फादर्स आर एज टायर्ड दे आर बीइंग कंपेयर्ड टू देयर फादर्स, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में बात की जा रही है। व्हाट आर देयर कंप्लेंट्स, तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन कौन सी थी गाइस, इसकी देखते हैं एक बार।
द फादर as tired as guys वर्ड यूज किया गया, कंपैरिजन किया गया है, तो आई थिंक द राइट आंसर इज सिमिली। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सिमिली हो जाएगा। सिमिली इज इन द ऑप्शन। व्हाट डज द वर्ड अपैथी मीन, अपैथी का मीनिंग आपको बताना है गाइस। अपैथी का मीनिंग बताइए फटाफट क्विकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपैथी। तो गाइस अपैथी क्या होता है, अ स्टेट विदाउट इमोशंस, यस। अ स्टेट विदाउट एंथुजियाज्म, यस। अ स्टेट विदाउट zeal and yes, तो तीनों सेम है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सी क्वेश्चन है, व्हाई डजंट एनी बैंगल मेकर डेयर टू स्पीक अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट्स, कोई बोलता क्यों नहीं है, फॉर दे आर इलिटरेट, फॉर दे आर बैकवर्ड्स, फॉर दे वांट टू परस्यू द सेम प्रोफेशंस, यस। फॉर दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, इलिटरेट भी हैं, बैकवर्ड्स भी हैं, दे वांट टू परस्यू द सेम प्रोफेशन, वही करना चाहते हैं, फॉर दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। आई थिंक देयर इज अ टाइपिंग एरर, तो ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर दे आर इलिटरेट, मेन जो आंसर है वो इलिटरेट है। तो गाइस इस क्वेश्चन में एरर है, इसको रीराइट कर लेंगे हम, इसको अभी छोड़ दीजिए। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टिग्मा, स्टिग्मा का मीनिंग बताना है आपको, मार्क एंड स्टेन दोनों होता है, तो राइट ऑप्शन इज बोथ 1 and 2। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं गाइस। एक्सट्रैक्ट 16th पे, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, नरेटर she gets happy, she gets excited when she gets to see a boy like Mukesh who has an optimistic approach towards life, who wants to become a motor mechanic, उसके बारे में बात की जा रही है। देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। Why does the narrator feel cheered on seeing Mukesh, बिल्कुल डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, ये रैक पिकर नहीं बनना चाहता, ये भी नहीं है, तो he is different from others, he wants to be his own honor, or you can say he wants to be his own master, क्योंकि इसकी अप्रोच जो है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। व्हाट डज द वर्ड मर्मर मीन्स, मर्मर का मतलब स्पीक सॉफ्टली होता है, हार्शली और फास्टली नहीं होगा, सॉफ्टली होगा। व्हाई डज मुकेश नॉट ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स, फॉर ही हैज नो मनी, ये भी ठीक है। फॉर ही नोज हिज लिमिट, ये भी ठीक है। फॉर ही इज डिटरमिन्ड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो ऑल ऑफ दीज आई थिंक इज द राइट ऑप्शन। एक बार मैच कर लेंगे। Which literary device has been used in the last line, few planes fly over Firozabad, 3 बार F का यूज किया गया है guys, so the right option is alliteration, got it। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, मैच, एलिट्रेशन ठीक है, फॉर इज डिटरमिन्ड ये भी ठीक है, स्पीक सॉफ्टली, चारों के चारों ऑप्शंस क्या हैं हमारे, बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखते हैं अगर नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है तो, पर इरेज कर देते हैं इसको। सो गाइस दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स, यही एक्सट्रैक्ट है, 16 एक्सट्रैक्ट्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 16 के 16 डिस्कस कर लिए गाइस। इफ यू लाइक दिस पोस्ट, डू नॉट फॉरगेट इट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। There could be some typing errors guys, my tongue might have slipped somewhere or the other, so please do not take it otherwise, it happens when you speak continuously for a long time, हो जाता है ऐसा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो do share it with your friends और सब्सक्राइब करना ना भूले, do press the bell icon for getting the timely and regular updates। Thank you very much, that was all about today's lesson, today's session, have a nice day।